بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام، پانچویں نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام، اور اب چھٹویں نمبر پر ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ان کو خلیل اللہ اور ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل میں سے نبی آئے تھے۔ ان کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست، اللہ کا بہت قریبی دوست، اللہ کا دوست، یہ ایک لقب تھا ان کا۔ اور ایک لقب تھا ان کا ابو الانبیاء یعنی کہ نبیوں کا باپ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، پر پوتے ان میں سے ہی آئے تھے، باہر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے ان کے نسل میں سے ہی آئے تھے، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ ان کے والد کا نام یعنی کہ فادر کا نام آزر تھا۔ ان کے دو ازواج یعنی کہ دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام تھا حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری بیوی کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ان کی دو ازواج تھی۔ ان کی پہلی ازواج کا نام حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسری ازواج کا نام حضرت ہاجر علیہ السلام تھا۔ ان کی پہلی ازواج سے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی دوسری ازواج سے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد ان کی جگہ کون سی تھی، کون سی جگہ پر یہ پیدا ہوئے تھے؟ علماء کے نزدیک اکارڈنگ ٹو اسکالرس کے علماء کے انوسار یہ عراق کے شہر بیبیلون میں پیدا ہوئے تھے، لیکن قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسکالرس کے نزدیک بیبیلون نام کا ایک شہر عراق میں تھا، اس میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کہیں الگ الگ جگہوں پر ہجرت کیا تھے، انہوں نے الگ الگ جگہوں پر ہجرت کیا تھا۔ علماء کے نزدیک یہ عراق کے شہر بیبیلون میں پیدا ہوئے تھے، پر یہ کئی الگ الگ جگہ جیسے کہ کینان کہتے ہیں فلسطین کے نیچے طرف کے حصے کو،
पैलेस्टाइन का एरिया को केनान कहा जाता था उस टाइम। मक्का या फिर मिस्र वगैरह में बहुत से अलग जगहों पर हिजरत किया था। अब इनको देखते हैं इनकी कौम का गुनाह क्या था। ये इनके कौम में के लोग अल्लाह के साथ शिर्क किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क शुरू हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तक तमाम नबियाँ जितने भी थे, जिनका भी कुरान हदीस में जिक्र है, उनकी कौम का गुनाह शिर्क ही था। उसके अलावा उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे गुनाह भी शुरू हुए। इनके बाद जो नबी आए उनके लोग दूसरे गुनाह भी शुरू करे। लेकिन कुरान हदीस में जिन नबियों का जिक्र है, 25 नबियों का, उसमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों का गुनाह, नबियों के जो लोग थे, कौम का गुनाह शिर्क ही था। इनका भी कौम का गुनाह भी शिर्क था। अब उसके बाद हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू करते हैं। और याद करो, जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आदर से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से मुखातिब होकर, अपने वालिद से मुखातिब होकर कह रहे हैं, उनके वालिद का नाम आजर था। आदर से, क्या तुमने उन बुतों को अपना खुदा बना रखा है? तुमने बुतों को यानी कि मूर्तियों को खुदा बना रखा है, तुम लोग उनकी इबादत करते हो। मेरी राय में तो आप और आपकी कौम खुली गुमराही में मुब्तला है। मेरी बात मानिए, आप और आपकी कौम, आपके लोग जो भी हैं, आपके दोस्त अहबाब, सब लोग खुली गुमराही में हैं, खुली तरह से गुमराह है। गलत फॉल्स गॉड्स की इबादत करते हैं, गलत खुदा की इबादत करते हैं, खुली गुमराही में मुब्तला है, मूर्तियों की इबादत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा। और उसी तरह हम दिखाते रहे इब्राहिम को आसमानों और जमीन की मिल्कियात, ताकि वो पूरी तरह यकीन करने वालों में से हो जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान के और जमीन के तमाम मिल्कियात दिखाए, तमाम बादशाहियत दिखाई, तमाम मिल्कियात, हर चीज कैसे काम करती है क्या है दिखाया, ताकि वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाए, पूरी तरह यकीन करने वालों में से हो जाए। बस जब रात ने इनको ढांप लिया तो इन्होंने देखा एक सितारे को। जब रात का वक्त हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब है। सितारे को देखकर कहा कि ये रब है, ये मेरा रब है, क्योंकि ये चमकता है। फिर जब वो गुरूब हो गया, जब तारा डूब गया, हट गया, वहां से चले गया, तो कहने लगे कि मैं गुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। नहीं, गुरूब होने वाली चीज खुदा नहीं हो सकती। जो चीज डूब गई वो कैसे खुदा हो सकती है? खुदा हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है। मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। बस जब रात ने उनको ढांप लिया तो इन्होंने देखा एक सितारे को, तो कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे कि मैं गुरूब हो जाने वाले को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने देखा चांद चमकता हुआ, उसके बाद इसी तरह चांद को देखा, चांद बड़ा था, पूरे सितारों के दरमियान चमक रहा था। तो चमकता हुआ तो कहा, ये मेरा रब है। तो क्या कहा? फिर जब इन्होंने देखा चांद चमकता हुआ तो कहा, क्या ये मेरा रब है? ये मेरा रब है क्या बोल के सवाल करे खुद से। फिर जब वो भी गायब हो गया तो इन्होंने कहा, अगर मेरे रब ने मुझे मुझे हिदायत ना दी तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। जब वो भी गायब हो गया तो वो समझ गए कि ये भी रब नहीं है, ये भी खुदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह मेरे को हिदायत नहीं देगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। उसके बाद फिर जब देखा सूरज को बहुत चमकदार। उसके बाद जब सुबह हुई तो सूरज निकला तो कहने लगे, सूरज को चमकते हुए देखा, चांद से ज्यादा, हर चीज से सबसे ज्यादा चमक रहा था वो। फिर जब देखा सूरज को बहुत चमकदार तो कहने लगे, हाँ, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, चांद से भी बड़ा था, सबसे बड़ा था, कारण से भी सबसे। फिर जब वो भी गायब हो गया तो इन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों। फिर जब वो भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया था, तो उसके बाद कहा उन लोगों ने, ए मेरी कौम के लोगों, मैं ऐलान बरात करता हूँ उन सब से जिन्हें तुम शरीक ठहरा रहे हो। जब वो भी गायब हो गया तो समझ गए वो भी खुदा नहीं है। गायब होने वाली चीज खुदा नहीं हो सकती। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि खुदा अनदेखा है,
खुदा को देखा नहीं जा सकता इस दुनिया में। तो कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, मैं ऐलान बेरात करता हूँ, यानी कि खुली तरह से ऐलान करता हूँ, साफ तौर पर ऐलान करता हूँ, ओपनली ऐलान करता हूँ उन सबसे जिन्हें तुम शरीक ठहरा रहे हो, उन सब चीजों से जिनको तुम अल्लाह के मुकाबिल शरीक ठहराते हो, कि ये खुदा नहीं है, ये मूर्तियां खुदा नहीं, अल्लाह असल खुदा नहीं है। उसके बाद मैंने तो अपना रुख कर लिया है यकसो होकर उस हस्ती की तरफ जिसने आसमान व जमीन को बनाया है। मैं उस हस्ती की तरफ उसकी इबादत करता हूँ जो आसमान व जमीन का खुदा है, जिसने आसमान व जमीन को बनाया है। और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, और मैं मुशरिकों में से भी नहीं हूँ। मुशरिकों यानी कि किसी और के, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वालों में से नहीं हूँ। अब आपकी कौम आपसे बहस करने लगी, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस शुरू कर दी। वही उसी तरह जिस तरह से तमाम पिछले तमाम कौमों ने किया था। अब आपकी कौम आपसे बहस करने लगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो अल्लाह के बारे में, जबकि मुझे तो उसने हिदायत दी है। अल्लाह के बारे में मेरे से बहस कर रहे तुम, जबकि अल्लाह ने तो मेरे को तो हिदायत दे दी है, अल्लाह ने मेरे को हिदायत दी है, मेरे को नबी बनाया है। तो क्या तुम मेरे से उसके बारे में बहस करते हो? और मुझे खौफ नहीं है उनका जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते रहे हो। मुझे उसका भी खौफ नहीं है जिनका तुम उसको शरीक ठहराते हो, जिसको तुम अल्लाह के मुकाबिल जिसको शरीक ठहराते हो, मुझे उनका खौफ नहीं है। जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते रहे हो, सिवाय उसके कि मेरा रब ही कोई बात चाहे। मेरा रब हर शय का इल्म के एतबार से अहाता किए हुए है। अगर मेरा अल्लाह ही कुछ चाहे तो हो सकता है, तुम्हारे माबूद जो भी चाहे, जिसको तुम अल्लाह के मुकाबिल शरीक ठहराते हो, उनसे मेरे को कुछ खौफ नहीं है। अगर मेरा अल्लाह ही चाहे तो कुछ कर सकता है, वरना वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बात चाहे, मेरा रब हर शय का इल्म के एतबार से अहाता किए हुए है। तो क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते उसके बाद भी? क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते उसके बाद? तुम लोग उतनी समझ नहीं रखते, नसीहत हासिल नहीं करते, इल्म नहीं लेते, एडवाइस नहीं लेते क्या? इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा। उसके बाद, और मैं कैसे डरूं उनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन लोगों को तुमने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है, मैं उनसे कैसे डरूं? मैं उनसे कैसे डर सकता हूँ अल्लाह के मुकाबले में? और मैं कैसे डरूं उनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है, जबकि तुम उस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए हैं। तुम नहीं डर रहे उस बात से, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे हो, तुम उस बात से डर रहे नहीं हो, तो मैं कैसे डरूं? मैं तो हक पे होते हुए कैसे डरूं? मैं अल्लाह के अलावा किसी छूटे हुए कोई पत्थरों से कैसे डरूं? वो पत्थर जिनको तुम लोगों ने खुद बनाया है, उनसे मैं किस तरह से डरूं, जबकि तुम लोग अल्लाह से नहीं डर रहे हो? शरीक ठहरा लिए है जिनके लिए अल्लाह ने तुम पर कोई सन नहीं उतारी, अल्लाह ने कोई सन भी नहीं उतारी, कोई आयत नहीं उतारी उनके लिए तुम पर। अभी तो हम दोनों फरीकीन में से कौन अमन का ज्यादा हकदार है? अगर तुम इल्म रखते हो तो हम लोगों में से अमन का इसका ज्यादा हकदार कौन है? कौन अमन चाह रहा है? अगर तुम समझ रहे हो तो उतना भी नहीं समझ रहे, क्या होता अल्लाह कोई सन नहीं उतारा, कोई निशानी नहीं उतारा, उसके बाद भी तुम इनकी इबादत कर रहे हो, तो कौन? अगर तुम इल्म रखते हो तो सोचो थोड़ा। उसके बाद आगे, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान को किसी तरह के जुल्म से आलूदा नहीं किया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही रायाब होंगे। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अपने ईमान को और इन्होंने अपने ईमान को किसी तरह के जुल्म से आलूदा नहीं किया, उसके बाद ईमान को किसी तरह से अलग नहीं किया, किसी तरह का जुल्म नहीं किया उनके ऊपर, दूसरों के भी ऊपर, खुद के भी ऊपर किसी तरह का जुल्म नहीं किया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही रायाब होंगे। वही लोग अमन है और वही रायाब, मतलब वही लोग हिदायत पाने वाले होंगे, हिदायत मिलेगी। ये हमारी वो हिज्जत थी जो हमने इब्राहिम को अता की थी। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये हमारी वो हिज्जत यानी कि वो चीज थी, यानी कि फिर वो दलील थी या वो चीज थी जो हमने इब्राहिम को अता की थी,
اس کی قوم کے خلاف، اس کی قوم کے خلاف پروف دیے تھے، یہ پروف دیے تھے، اس طرح سے بات کی تھی۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو چاہے ان کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ ہی حکیم اور علیم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا، اور یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام۔ اور ہم نے اس کو عطا فرمائی اسحاق اور یعقوب، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ ہم نے کیا؟ ان سب کو ہدایت دی تھی۔ اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، ان سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی۔ اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کے نام ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور ان کی اولاد میں سے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب ملا تھا، تو ان کے بعد تمام نبیاں انہی کے اولاد میں سے آئے تھے، سوائے لوط علیہ السلام کے، کیونکہ لوط علیہ السلام اس وقت آلریڈی پیدا ہو چکے تھے کسی اور خاندان میں، اور ان کو نبوت بھی مل گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ہی نبوت مل گئی تھی، اسی لیے لوط علیہ السلام ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، ان کے اولادوں میں سے نہیں تھے۔ لیکن لوط علیہ السلام کے علاوہ تمام نبیوں کو کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو، محسنین مطلب نیک کام کرنے والوں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سعادت کی راہ بخشی تھی، اس کو ہدایت دی تھی، پہلے ابراہیم کو ہدایت دی تھی ہم نے، اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے، ہر طرح سے کیا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی خبر رکھتے تھے۔ جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے والد سے، ان کے والد سے اور قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، کیا ہے یہ سب، کئی کو عبادت کر رہے ہیں ان کی، کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم لوگ اعتکاف کیے رہتے ہو، جن کے لیے اعتکاف کیے رہتے ہو مطلب ان کی عبادت کرتے ہو، آسان لفظوں میں ان کی عبادت کرتے ہو۔ اعتکاف مطلب ان کے لیے جا کے ٹھہر جانا، ان کے پاس ہی رہنا، تو آسان بھاشا میں ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب ابراہیم نے اپنے والد کو اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کیے رہتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے، وہی جو حود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا، وہی چیز انہوں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی کہہ رہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کوئی بھی کر رہے ہیں، ہم کو بھی نہیں معلوم، ان کو خود بھی نہیں معلوم ہے، بس باپ دادا کرتے تھے انہوں بھی کر رہی۔ ابراہیم نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے ابا و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ واقع ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ حق لائے ہیں یا صرف مذاق کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ کو ستا رہے کیا ایسا بول کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو ان کے لوگوں نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، سچی میں، فی الواقع مطلب سچی میں، اصلیت میں تمہارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں، اور میں خود کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا،
जबकि तुम चले जाओगे पीठ मोड़कर। तो जब तुम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ चाल चलूंगा, ताकि तुम लोग यकीन करो, मैं चाल चलते रहूंगा। तो आपने उन सब को टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिवाय उनके बड़े के। तो क्या किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जब सब लोग वहां पर नहीं थे, उनके इबादत गाह में नहीं थे, तो वहां पर जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, और सिवाय एक बड़े बुत के, जो सबसे बड़ा बुत था वहां पर, उसको छोड़कर तमाम को तोड़ दिया। तो आपने उन सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय उनके बड़े के, शायद कि वो उसकी तरफ रुजू करे। तो ये सोच करके वो उसको पूछेंगे। वो चिल्ला उठे, तो कौम के लोग को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, चिल्लाया, किसने किया है हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ। पूछो कि हमारे माबूदों के साथ ये सब कौन करा ये सब हिमाकत हमारे लोग माबूदों के साथ। वो यकीनन कोई बहुत ही जालिम है, बहुत ही जालिम इंसान ने ये काम किया है, उनके लोगों ने इस तरह से कहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनके बारे में बातें करते सुना था। एक नौजवान को, यानी कि एक इंसान को, नौजवान मतलब जस्ट जवान हुए थे उन्होंने, यूथ थे समझो, 18, 20, 22, 25, 27 ये साल के कुछ। कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनके बारे में बातें करते सुना था। उसे इब्राहिम कहते हैं, उसका नाम क्या था, इब्राहिम था। लोगों ने कहा कि फिर लाओ उसको सबके सामने, ताकि वो गवाही दे। तो लोगों ने क्या क्या लेके आओ फिर उसको पकड़ के, ताकि पूछताछ करे, गवाही दे, वो वही करा उसने किया या नहीं किया पता चले। लोगों ने कहा कि फिर लाओ उसको सबके सामने, ताकि वो गवाही दे। इन्होंने पूछा, तो उसके कौम के लोगों ने पूछा उनके, ए इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों के साथ ये सब कुछ तुमने किया है? तो उन्होंने पूछ बुलाया, उनको बुलाकर पूछा कि क्या ये सब तुमने क्या है हमारे माबूदों के साथ? आपने जवाब दिया, बल्कि ये उनके उस बड़े ने किया है। तो सबसे बड़े बुत को छोड़ दिए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नहीं तोड़े थे। तो उन लोगों से फरमा के बड़ा बुत जो है उन्हें अच्छा खासा है ना, उन्हें तोड़ाऊंगा। उसने क्या है, इस बड़े ने किया है। तो पूछ कर देखो उनसे, अगर ये बोलते हो। तो वो बड़े बुत तोड़ा, उनसे पूछो, तोड़ाऊंगा, क्योंकि उन्हें तो साबित है, तो उनसे पूछो, बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। आपने जवाब दिया, बल्कि ये उनके उस बड़े ने कहा, बड़े ने किया है, तुम पूछ कर देखो उनसे, अगर ये बोलते हो। उस पर इन्होंने अपने अंदर ही अंदर सोचा और कहने लगा कि यकीनन तुम खुद ही जालिम हो। तो लोगों ने समझ गया कि लोग तो अब बुत तो तोड़ नहीं सकता, तो जरूर यूनुस तोड़े। तो लोग सोच लिए कि तुम ही करे, ये तुम ही जालिम हो, तुमने ही ये क्या है। उस पर इन्होंने अपने अंदर ही अंदर सोचा और कहने लगे कि यकीनन तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सर को औंधे किए हुए कहा, तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। तो सर को औंधे हुए किए मतलब उल्टे हुए, कुछ बिना अकल की बात करते करते हुए किए, तो बोले कि तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। क्यों? उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ पत्थर के बुत है, नहीं बोल सकते, तुम जानते हो। तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या तुम लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को पूछते हो जो ना तो तुम्हें कुछ नफा दे सकती है और ना ही तुम्हारा कुछ नुकसान कर सकती है? जब उन्होंने नहीं बोल सकते, तुम आपको मालूम है नहीं बोल सकते, तो कई को उनकी इबादत कर रहे हो, तुम कई को पूज रहे हो उनको। वो चीजों को अल्लाह के अलावा तुम ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हो जो ना कुछ फायदा पहुंचा सकती है, पत्थर तुमको ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती। तो कई को ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हो तुम, जब तुमको मालूम है ये बोल भी नहीं सकता वो पत्थर, तो क्यों इबादत करते हो उनकी? तो क्या तुम लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को पूछते हो जो ना तो तुम्हें कुछ नफा दे सकती है और ना ही तुम्हारी कुछ नुकसान कर सकती है? तो उफ है तुम पर भी और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो। तो क्या तुम लोग अक्ल से काम ले से नहीं लेते? तो अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों को तुम पूछते हो उन पर भी और तुम पर भी उफ है, यानी कि अफसोस है। तो क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते? इन्होंने कहा। तो उसके बाद जो लोगों ने कहा, जला डालो उसे
और मदद करो अपने माबूदों की अगर तुम्हें कुछ करना ही है। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि अपने माबूदों की जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मदद करो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या करो, जला दो बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला देने का हुक्म दे दिए लोग। जला डालो उसे और मदद करो अपने माबूदों की अगर तुम्हें कुछ करना ही है। हमने हुक्म दिया कि अपने आग तो ठंडी होना हमने हुक्म दिया कि ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उस आग में जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जा रहा था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उस आग को कि तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, और आग ठंडी हो गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें बिल्कुल भी नहीं जले। हमने हुक्म दिया कि ये लोग तू ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। और इन्होंने इरादा किया उसके साथ एक चाल चलने का, लेकिन हमने उन्हीं को कर दिया खसारा उठाने वाला। तो इस तरह से क्या किया, उन लोगों ने, उनके कौम के लोगों ने उनके खिलाफ चाल चली, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया और उन्हीं को खसारा उठाने वालों में, यानी कि नुकसान उठाने वालों में से कर दिया। और इब्राहिम को लूत को बचाकर की उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने बरकतें रखी हैं सब जहां वालों के लिए। तो उसके बाद क्या किया अल्लाह ताला ने, लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में से ईमान ले आए थे उनके ऊपर, तो इब्राहिम को लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए। दोनों को क्या किए, निकाल लिए उस जमीन में से। तो वो दोनों हिजरत करके दूसरी तरफ हिजरत कर गए। और इब्राहिम को लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने बरकतें रखी हैं सब जहां वालों के लिए, सब जहां वालों के लिए बरकतें रखी। मोस्ट प्रोबेबली इब्राहिम अलैहिस्सलाम केनान की तरफ हिजरत कर गए थे। लूत अलैहिस्सलाम कहाँ गए थे उसकी, वो हम आगे देखेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की कहानी में उनका जगह का जिक्र तो एग्जैक्टली नहीं मिलता है, पर हम वो आगे कहानी में देखेंगे उनकी, जब लूत अलैहिस्सलाम के बारे में देखेंगे तो। और हमने उसको इसहाक अता फरमाया और याकूब उस पर मजीद। इसहाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे का नाम था, जो उनकी पहली अज़वाज हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे। और याकूब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। और हमने उसको इसहाक अता फरमाया और याकूब उस पर मजीद। और उन सबको हमने साले बनाया, यानी कि नेक काम करने वाला बना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने हिज्जतबाजी की थी, हिज्जतबाजी की थी इब्राहिम से, उस वजह से कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी हुई थी। तो क्या हुआ, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जगह पे जो बादशाह था उसने इज्जतबाजी यानी कि बहस की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, कि अल्लाह ने उसको बादशाही दी थी, वहां का बादशाह था वो, तो उसकी वजह से बहस करने लगा। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, इब्राहिम ने कहा कि, उससे कहा कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। तो उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। जिंदा करता हूँ मतलब मैं भी किसी को भी जिंदगी दे सकता हूँ, क्योंकि बादशाह था, किसी को भी जिंदगी दे सकता था उन्हें, किसी को भी मार सकता था। वहां पे लोगों में जितने भी लोग थे वहां पर, किसी को भी मौत का हुक्म दे सकता था उन्हें, किसी को भी नहीं इसको जीने दो बोल के छोड़ दे सकता था। तो उस तरह से उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तो इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। अल्लाह ताला क्या करता है, सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में डुबोता है, तू उसको क्या कर, मगरिब से निकाल कर दिखा। तो मबहूत होकर रह गया काफिर, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। तो मबहूत होकर रह गया यानी कि नुकसान में, नुकसान उठाने वालों में, या फिर खत्म होकर रह गया उन्हें। काफिर और मबहूत होकर रह गया काफिर
और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ताला क्या करता है, जालिमों को हिदायत देता नहीं। तो कोई जवाब नहीं था उसकी कौम का, तो उसकी कौम के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय उसके कि इन्होंने कहा इसे कत्ल कर दो या इसे जला दो, इसको कत्ल कर दो या जला दो। जला उसमें हमने देखा कि आग लगा के जलाने का हुक्म हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने वो आग को ठंडी कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच गए। कर दो और या उसको जला दो, तो अल्लाह ताला ने उसे निजात दी आग से। यकीनन उसमें निशानियां हैं। तो उसमें क्या है, निशानी है अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए क्या है, इसमें निशानी है। और इब्राहिम ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह के सिवा जो बुत बना रखे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों से, अल्लाह के सिवा तुम लोगों ने जो बुत बना रखे हैं, ये तो बस दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे आपस की मोहब्बत की वजह से है। ये बस दुनिया की जिंदगी में है तुम्हारे आपस की मोहब्बत की वजह से, वरना ये लोग तुम्हें कुछ ना फायदा दे सकते ना कुछ नुकसान दे सकते, वजह से है। फिर कयामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे। जब दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया, तुम एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर दोगे। तुम कयामत के दिन एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे। और एक दूसरे पर क्या करोगे, लानत भेजोगे, यानी कि कोसोगे एक दूसरे को। दुनिया की जिंदगी में तो इनकी इबादत कर रहे हो तुम, लेकिन कयामत के दिन इनकार कर दोगे, पहचानोगे भी नहीं, कोसोगे, इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे। और तुम सबका ठिकाना आग होगी अगर तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। और तुम सबका ठिकाना क्या है, आग होंगी, आग में डाला जाएगा अगर तुम लोग नहीं सुन ले तो। और तुम्हारा क्या होगा, कोई मददगार भी नहीं होगा उस दिन। तो लूत उस पर ईमान ले आया। उस लूत अलैहिस्सलाम उनकी कौम में से क्या किया, उन्होंने उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। और इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये लोग नहीं सुन रहे थे, तो आग में से निकाले जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कहा कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, किसी दूसरी जगह पर जाकर रहूंगा। वो और लूत अलैहिस्सलाम दोनों भी। तो इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, यकीनन वो जबरदस्त हिकमत वाला है। उसके बाद आगे, और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए। सेम वही हमने देखा, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। और उसकी नस्ल में हमने रख दी नबूवत और किताब, और हमने उसे दुनिया में भी उसका अजर अता किया। और क्या किया, दुनिया में भी अजर अता फरमाया। दुनिया में भी उसको अजर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अजर दिया उसका। और आखिरत में भी वो यकीनन हमारे नेक बंदों में से होंगे। और आखिरत में भी क्या होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक बंदों में से होंगे। और उसी की जमात में से इब्राहिम भी था। उसी की जमात यानी नूह अलैहिस्सलाम की जमात में से, या फिर नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से। अल्लाह ताला फरमाते कि उसी की नस्ल यानी नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल या फिर उसकी की जमात में से इब्राहिम भी था। जब वो अपनी रब की तरफ मुतवज्जे हुआ साफ दिल के साथ, जबकि उसने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किन चीजों को पूछते हो, किन चीजों को पूछ रहे हो तुम लोग, ना सुनते हैं लोग, ना समझते कुछ, ना बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कई को पूछ रहे हो तुम लोग। क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा खुद साख्ता माबूदों को चाहते हो? तो अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद चाहते हो तुम लोग, ऐसे माबूदों को पूछना चाहते हो जो खुद साख्ता है, यानी कि तुमने खुद ने बनाया है। ये माबूदों को तुमने खुद ने बनाया है, तुम खुद बना रहे, फिर तुम खुद ही उनकी इबादत कर रहे। तो इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा खुद साख्ता माबूदों को चाहते हो? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन के बारे में? तो रब्बुल आलमीन के बारे में क्या वो गुमान है, क्या सोचते हो तुम लोग रब्बुल आलमीन सारे आलम के रब के बारे में? तो तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन के बारे में? बस उसने एक नजर सितारों पर डाली। ये सबसे पहले हुआ था, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। बस उसने एक नजर सितारों पर डाली, फिर कहा कि मैं तो बीमार हूँ। तो वो उससे फिर गए
पीठ फेरते हुए। फिर वो चुपके से उन माबूदों में जा घुसा और कहने लगा कि तुम खाते क्यों नहीं हो। वहां पे इबादतगाह में गया जब कोई भी नहीं थे, तो उनको तोड़ने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या हुआ, तुम सामने खाना रखे, जिस तरह से मूर्तियों को दिया जाता है खाने के लिए उसी तरह दिया जाता था उस टाइम पर भी। तो खाना तुम्हारे सामने रखा है, क्या हुआ, कहीं क्यों नहीं खा रहे तुम खाते क्यों नहीं हो। क्योंकि मूर्ति तो खा नहीं सकती थी। फिर भी पूछ रहे थे क्या हुआ, कहीं क्यों नहीं खा रहे, तुम तो खुदा हो तो क्यों नहीं खा रहे फिर। तुम्हें क्या होगा, हो गया है कि तुम बोलते भी नहीं हो, तुम तो बोलते भी नहीं हो, बोल भी नहीं सक रहे तुम। फिर वो जा पड़ा उन पर जर्फ मारते हुए, यानी कि उनको मारते हुए, जर्फ लगाते हुए दाहिने हाथ से उन सबको मारकर तोड़ते हुए चले गया, सिवाय वो बड़े बुत के। और जब उनको पता चला कि उन्होंने तोड़ दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बड़ा बुत तोड़ाऊंगा, इसलिए इन्हें अच्छा है, इनको पूछो, ये सारा वाकया हमने भी देखा। तो जब बड़ा बुत को पूछो बोले, तो उनके कौम के लोगों ने कहा कि इन्हें, इनसे कैसा पूछना, इन्हें तो बोलता भी नहीं। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर कहीं को इबादत कर रहे, जब उन्हें बोल भी नहीं सकता मालूम है, तो इबादत क्यों कर रहे तुम उनकी। इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको इन्फ्लुएंस किया और समझाने की कोशिश की। फिर वो जा पड़ा उन पर जर्ब लगाते हुए दाहिने हाथ से, तो वो उसकी तरफ आए दौड़ते हुए, उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। जब लोगों को पता चला, उसने कहा क्या तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। तुम लोगों ने तो तराश के बनाया ना, वो कौन से पत्थर उठाए, उठा के तराशे तुम लोग, आज खुद तराशे, तराश के तुम लोग ही मानो कि कई को इबादत कर रहे खुद तराश के। वैसा बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबकि अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें भी, और जो कुछ तुम बनाते हो, तो तुम्हें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, इनको भी अल्लाह ताला ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत क्यों करते हो। इन्होंने कहा कि उसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको शोले मारती हुई आग में झोंक दो। तो इन्होंने कहा कि उसके लिए एक इमारत बनाओ, उसमें आग लगाओ और उसको आग में डाल दो। तो उसी तरह इन्होंने उसके साथ एक दांव आजमाया, लेकिन हमने उनको ही नीचा दिखा दिया। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जाओ, और आग ठंडी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत निकल गए, और उन्हीं लोगों को नीचा दिखाया अल्लाह ताला ने। और उसने कहा कि मैं अपने रब की तरफ तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी रब की तरफ जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ, किसी और जगह पर चले जाऊंगा, किसी और जगह पर हिजरत कर रहा हूँ। और उसने कहा कि मैं अपनी रब की तरफ जाने वाला हूँ, और जरूर मेरी रहनुमाई करेगा, वो जरूर रहनुमाई करेगा, मेरी मदद करेगा वो। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद क्या किया, आगे जाके अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगार मुझे एक साले बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता कर मुझे। तो हमने उसे बशारत दी एक हलीमुल बता लड़के की, यानी कि सब्र करने वाले लड़के की बिशारत दी, सब्र करने वाले लड़के की खुशखबरी दी। ये यहाँ पर ये उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तक इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की बात हुई थी, ये उनके बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो हमने उसे बशारत दी एक सब्र करने वाले लड़के की। फिर जब वो पहुंचा उसके साथ भाग दौड़ करने की उम्र को, उसने कहा ए मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें जुबा कर रहा हूँ। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म आया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबा कर दो। फिर जब वो पहुंचा उसके साथ भाग दौड़ करने की उम्र को, उसने कहा ए मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें जुबा कर रहा हूँ, यानी कि कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारा गला काट रहा हूँ। तो देखो तुम्हारी क्या राय है, तो तुम क्या बोलते हो इस बारे में, बोल के इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा। तो उसने कहा अब्बा जान, आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म हो रहा है, तो जिसका आपको हुक्म हो रहा है जो चीज का, वो आप कर दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप क्या करेंगे, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
फिर जब दोनों ने फर्माबरदारी की रोश इख्तियार कर ली और इब्राहिम ने उसको पेशानी के बल लिटा दिया, तो दोनों जब रेडी हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुबा करने के लिए तैयार थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम जुबा होने के लिए तैयार थे, रेडी हो गए थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, वो बाद में देखेंगे हम। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो दोनों भी तैयार हो गए। और इब्राहिम ने उसे पुकारा कि ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, यकीनन हम उसी तरह बदला देते हैं मोहसिनीन। मोहसिनीन यानी कि नेक काम करने वालों को। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुबा करने जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इब्राहिम, तुमने ख्वाब ख्वाब सच कर दिखाया है, तुम्हारा जो ख्वाब था, जो हुक्म हमने दिया था, वो सच कर दिखाया। तुम सच कर दिखाया तुमने, तुम हमारे हुक्म की फर्मा बरदारी करते हो, यानी कि तो इसी तरह हम बदला देते हैं मोहसिनीन को, यानी कि नेक काम करने वालों को। ये यकीनन बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ी क्या थी, आजमाइश थी, कि एक बाप अपने बेटे को खुद जुबा कर रहा है और एक बेटा खुद तैयार है अपने बाप के हाथों जुबा होने के लिए। तो एक बहुत बड़ी आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन दोनों ने पूरा किया। तो अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबा नहीं किया, वहां पर रोक दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन आजमाइश बहुत बड़ी थी ये। यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और हमने एक ज़बा अजीम उसका फदिया दिया, उसका एक बहुत बढ़िया फदिया, यानी कि बहुत बड़ा रिटर्न दिया, कि वो जो काम हो रहा था, वहां पर एक मेंढे या फिर बकरा को लाके ज़ुबा किया गया उनकी जगह पे। और उस दिन को आज तक मुसलमान ईद उल अजहा यानी कि कुर्बानी की ईद के नाम से आज तक मनाते हैं। और हमने एक ज़ुबा अज़ीम उसका फ़दिया दिया, उसके बदले में फ़दिया यानी कि रिटर्न दिया। तो ये ईद आज तक मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है। और उस पर हमने बाकी रखा बाद में आने वालों में से भी, तो बाद में आने वालों में से भी इस पर हमने बाकी रखा। अल्लाह ताला ने क्या किया, वो ईद सबके लिए कर दी। तो आज तक भी उस ईद को मनाया जाता है। सलाम हो इब्राहिम पर, उसी तरह हम बदला देते हैं मोहसिनीन को, नेक काम करने वालों को। यकीनन वो हमारे मुमीन बंदों में से था, मुमीन बंदों में से, नेक बंदों में से था। और हमने उसे बशारत दी इसहाक की, एक नबी, सालेहीन की, एक नेक नबी की। इसहाक की बशारत दी थी, एक नेक नबी थे वो। इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे। और हमने बरकत नासिल की थी उस पर भी और इसहाक पर भी। उस पर भी क्या कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पे भी बरकत नाजिल किया और इसहाक अलैहिस्सलाम पर भी। और इन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी थे और अपनी जानों पर जरी जुल्म करने वाले भी। तो उनके औलाद में क्या थे, नेक लोग भी थे और जुल्म करने वाले भी उनके औलादों में से आए थे। और हमने बरकत नाजिल की उस पर भी और इसहाक पर भी। और इन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी थे और अपनी जानों पर जुल्म करने वाले भी थे। और जरा याद करो, जब इब्राहिम को आजमाया उसके रब ने बहुत सी बातों से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या क्या बहुत सी बातों से आजमाया, शुरू से लेकर आखिरी तक। पहले तो उनके खुद के बाप मुशरिक थे, तो पहले तो वालिद को समझाए नहीं समझे, कौम के लोगों को समझाए नहीं समझे, यहाँ तक कि आग में डाल दिए कौम के लोग। आप फिर खुद की कंट्री छोड़ के चले जाना पड़ा, दूसरी जगह हिजरत कर दिए। तो इसी तरह बहुत से, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने खुद के बेटे को दुबा करने का हुक्म दिया। बहुत सी चीजों से आजमाया अल्लाह ताला उनको। और जरा याद करो, जब इब्राहिम को आजमाया उसके रब ने बहुत सी बातों से, तो उसने उन सबको पूरा कर दिखाया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हर टेस्ट में पास हुए, सबको पूरा करके दिखाया। तब फरमाया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब मैं तुम्हें नोए इंसानी का इमाम बनाता हूँ, यानी तमाम इंसानियत का क्या करता हूँ, इमाम बनाता हूँ, लीडर बनाता हूँ। इन्होंने कहा और मेरी औलाद में से भी, तो और मेरी औलाद में से भी बना, बल्कि अल्लाह ताला क्या करे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा ये खुद जालिमों से मुतालिक नहीं होगा। जालिमों से मुतालिक, जो लोग गलत काम करते हैं, जो जुल्म करते हैं, शिर्क करते हैं, उनसे मुतालिक नहीं होगा। उनमें भी मैं अलग लीडर्स बनाऊंगा, लेकिन जालिमों से मुतालिक नहीं होगा मेरा। और याद करो, जब हमने उस घर बैतुल्लाह को करार दे दिया लोगों के लिए इज्तिमा की जगह, तो अल्लाह ताला ने क्या किया,
बैतुल्ला, मक्के में जो घर है बैतुल्ला, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर बनाए थे। करार दे दिया लोगों के लिए इज्तिमा कीजिए, और उसे अमन का घर करार दे दिया। उसको क्या किया, अमन का घर बना दिया। और मुकाम इब्राहिम को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो। मुकाम इब्राहिम, जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो जगह खड़े रह के घर बनाए थे, वो उसको क्या करो, अपनी नमाज पढ़ने की जगह बना लो वो जगह को। और हमने हुक्म किया क्या था इब्राहिम और इस्माइल को कि तुम दोनों मेरे उस घर को पाक रखो, तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या हुआ, हुक्म हुआ कि अब ये घर बहुत बाबरकत घर है, यहाँ पे जो भी आएंगे तवाफ करने, इबादत करने के लिए, उन सब के लिए क्या करो, ये घर को पाक रखो, ये जगह को साफ रखो। और याद करो जबकि इब्राहिम ने दुआ की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ कर रहे थे, ए मेरे परवरदिगार, उस घर को अमन की जगह बना दे, इस घर को क्या कर, अमन की जगह बनाओ, यानी कि पीस की जगह बना, अमन की जगह बना, बोल के दुआ करी। और यहाँ आबाद होने वालों को फलों का रिस्क अता फरमा, और ये यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग आबाद हो रहे थे, उनको क्या कर, फलों का रिस्क अता कर। जो कोई उनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, जो कोई भी क्या कहे इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पे क्या करता है, ईमान लाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो कुफ्र करेगा तो उसको भी मैं दुनिया की चंद रोज जिंदगी का सारा सामान तो दूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग कुफ्र करेंगे, जो लोग नहीं मानेंगे मेरे ऊपर या गुनाह करेंगे, उनको भी दूंगा मैं, यहाँ पर, यहाँ मक्के में उनको भी क्या करूंगा मैं, ये जगह पर, यहाँ दुनिया का सामान उनको भी दूंगा मैं। फिर उसे कशा कशा ले आऊंगा जहन्नम के अजाब की तरफ। लेकिन आखिरत में क्या होगा, जहन्नम के अजाब की तरफ ले आऊंगा, जहन्नम में डाले जाएंगे वो लोग। दुनिया में तो दे दूंगा मैं उनको भी, माल दूंगा, दौलत दूंगा, खाना पीना रहना सब दूंगा, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं, जहन्नम के अजाब की तरफ ले आऊंगा ले आऊंगा जहन्नम के अजाब की तरफ। और वो बहुत बड़ी बुरी जगह है लौटने की, और वो क्या है, लौट के वापस आने के लिए बहुत बुरी जगह है वो। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल हमारे घर की बुनियादों को उठा रहे थे, और याद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, दोनों घर की बुनियादें उठा रहे थे, बैतुल्लाह को बना रहे थे, काबे शरीफ की तामीर कर रहे थे, ए, उठा रहे थे। तो क्या दुआ की थी उन्होंने, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, यकीनन तू सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। तो उन्होंने क्या दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, यकीनन तू सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बनाए रख, हम लोगों को क्या कर, अपना फर्मा बरदार बनाए रख, गुमराह होने मत दे। और हम दोनों की नस्ल से एक उम्मत उठाए जो तेरी फर्मा बरदार हो, और हम दोनों की नस्ल से क्या कर, एक उम्मत उठाइयो। पहले क्या दुआ की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से। अब यहाँ पर दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से, जो तेरी फर्मा बरदार हो, और हमें हज करने के कायदे बतला दे, जो तेरी फर्मा बरदार हो, और हमें हज करने के कायदे बतला दे, और हम पर अपनी तवज्जो फरमा, फरमा, यकीनन तू ही बहुत ज्यादा तौबा का कबूल करने वाला है, कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। तू ही क्या है, बहुत ज्यादा तौबा का कबूल फरमाने वाला है। तो पहले क्या दुआ की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से, वहां से कौन थे, बहुत बड़ी जमात के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया था, लेकिन वादा किया था, लेकिन जो जालिम है उनके ऊपर मेरा वादा नहीं आएगा, उनके मुखातिब नहीं बोल रहा हूं मैं, जो जुल्म करने वालों के मुखातिब। तो उनकी जमात में से जो लोग आए थे वो कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐसे होते होते वो जो जनरेशन बनी थी, उनकी जनरेशन में से ईसाई और यहूदी थे। अब उसके बाद यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में जो आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इसी तरह
आगे जाने के बाद इनकी नस्ल में जो नबी आए थे वो थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नस्ल में से मुस्लिम्स थे। और ये हमारे परवरदिगार उन लोगों में उठाइयो एक रसूल जो खुद उन्हीं में से हो, इनमें से क्या करो एक रसूल को उठाओ बोल के दुआ करे थे। वो रसूल थे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हमारे परवरदिगार उन लोगों में से उठाओ एक रसूल खुद उन्हीं में से जो उन्हें तेरी आयत पढ़कर सुनाए, तेरी आयतें क्या करे उनको पढ़कर सुनाए, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, इनको क्या करे किताब की तालीम दे, और उनको पाक कर यकीनन तू ही जबरदस्त और कमाल हिकमत वाला है, तू ही क्या है कमाल हिकमत वाला है। और कौन होगा जो इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह ताला फरमा रहे और कौन होगा जो इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़ेगा सिवाय उसके जिसने अपने आप को हिमाकत ही में मुब्तला करने का फैसला कर लिया हो। इब्राहिम के तरीके से यानी कि हमको हुक्म दिया जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर रहो। तो और कौन होगा जो इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़े सिवाय उसके जिसने अपने आप को हिमाकत ही में मुब्तला करने का फैसला कर लिया है, उसके सिवाय जो अपने आप को हिमाकत में डाल लिया है जिन्होंने। और हमने तो उन्हें दुनिया में भी मुंतखब कर लिया था, हमने क्या किया दुनिया में भी उनको मुंतखब किया, और यकीनन आखिरत में भी और हमारे नेक बंदों में से होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी अल्लाह ताला ने करीबी रखा था, और आखिरत में भी क्या होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से होंगे। हम्म। जब भी कहा उससे उसके परवरदिगार ने कि मुतईन फरमा हो जा, तो उसने कहा कि मुतईन फरमा हो तमाम जहानों के परवरदिगार का। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं अल्लाह का फर्मा बरदार बनना चाहूंगा, अल्लाह का फर्मा बरदार तमाम जहानों के परवरदिगार का। और उसकी वसीयत कि इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी की थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को क्या कहा था, वसीयत की थी कि ए मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दिन पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने क्या किया तुम्हारे लिए, यही दिन पसंद फरमाया है, यानी कि यही मजहब यही रिलीजन पसंद फरमाया है। बस तुम हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। तो तुम क्या करना अल्लाह पर यकीन रखते हुए मरना, और हरगिज मुसलमान के अलावा किसी और मजहब में नहीं मरना। और उसकी वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को, और याकूब ने भी, ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, बस तुम हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। तो ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।